चले, ठीक है। मेरे ख्याल में थैंक यू भी सर। जस्ट क्विकली गो थ्रू द केसेस। आप किरण, आप बेशक शुरू कर दें जी, जो। sure. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir, and I am the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all. It's another echo session in series of hepatitis echo, and it's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with experts, and our expert for tonight is Dr. Zeeshan Ali. Before I introduce you to our expert for tonight session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions or use raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recording session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill in the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session, Dr. Zeeshan Ali Junejo, is a fellow of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine at Jinnah Sindh Medical University and Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved with PARSA ECHO Pakistan since the very beginning and been a true ECHO champion. He is the ECHO lead in the province of Sindh and has a keen interest in medical education. He is responsible for overseeing all projects related to Sindh and enrollment of spokes locally. At present, he is the Senior Vice President, Pakistan Society of Hepatology. We have two cases today. Dr. Mishal will be presenting the cases, so I will hand over to Dr. Mishal. Dr. Mishal. I think Dr. Mishal has not joined. I will request Dr. Amina if you can present because it was your case. Sure. Dr. Amina, are you online? Do I have to present this? नहीं, आमना शबीर हैं। आमना, आप लाइन पे हो? जी जी, अच्छा सॉरी। Sorry, Amna Shabir is with us in PARSA Trust. No issue. Let me read it out. नहीं, वो ठीक है। Well, I'll just go through it, Zeeshan. मैं उसके बाद I think ये जो पहला केस है, this is basically a patient who came to, ये basically हमारे पारसा के patients हैं, came for hepatitis B screening, और इसके बाद इनका hep C भी positive आ गया. He knew hepatitis B, but then he also turned out to be hepatitis C positive, and main complaints were fatigue, muscle pains, vertigo on and off, and epigastric pain. Examination पे pallor था positive, otherwise जो है there was none of the findings. So as you can see, hemoglobin is lowish, platelets are 262, ALT 61, AST 139, alkaline phosphatase 297, albumin 2.6, और seropositive for hepatitis B and C, और we have PCR जो है, अब I don't know इसमें इन्होंने थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, अल्ट्रासाउंड भी अवेटेड है, एंड वी डोंट हैव हेपेटाइटिस बी. तो इट इज मोर अबाउट जीशान के आप क्या एडवाइस करते हैं इसके वर्कअप का, क्योंकि बहुत सारी चीजें पेंडिंग है. वी हैव अनीमिया, impaired LFTs, ASTs greater than ALT, and APRI score calculated is 1.3. जी जीशान. जी अच्छा, this is a routine case we every now and then when we are looking
the hepatitis clinic, we come across the co-infection of hepatitis B and C. And when it comes to co-infection, there are certain guidelines, and which was recently been updated. It was some gray area, and there were expert opinions regarding treating co-infection of hepatitis B and C. But now it has been very clear to how to treat it. But before embarking on what should be treated, this is early phase of workup, as Asad has already pointed out, that it's relatively a premature case to be given a final word. A lot would be dependent upon what comes next. एनीमिया है मेल पेशेंट के अंदर, एनीमिया क्यों है? जब प्लेटलेट कम है और एपी को के शो कर रहा है कि थोड़ी अर्ली सिरोसिस है, बहुत ओवर्ट सिरोसिस वाला नहीं है, लेकिन एपी मोर देन 1 इज शोइंग सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस. सो वील हैव टू लुक इनटू के सिरोसिस के स्टेज के कॉन्टेक्स्ट में इसका वर्कअप, क्योंकि पहला जो इसका पॉजिटिव आया हुआ है. फिर बी का वर्कअप सारा का सारा भी पेंडिंग है, significantly high AST with relatively modestly increased ALT. So that all points on के जो है पेशेंट शायद सिरोसिस की तरफ जा रहा है, और जब पेशेंट सिरोसिस की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट की इंडिकेशन अर्ली होती है और हमें जल्दी डिसीजंस लेना है. बी का जो वर्कअप हमें कराना चाहिए इसके अंदर है, हम सिंध के अंदर हैं, सिंध के अंदर डी एंडेमिक है, तो ऑल हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट शुड बी स्क्रीन्ड फॉर हेपेटाइटिस बी. बी इटसेल्फ के लिए ई एंटीजन एचबी एनटीएच ई और एचबीवी पीसीआर इज रिकमेंडेड. बट हैविंग सेड दैट, ये तो है एक एकेडमिक प्रैक्टिस जहाँ पे हम एकेडमिक प्रैक्टिस कर रहे हैं. If this case, if I am sitting in कंबर, जिस तरह भी हम HCV एलिमिनेशन प्रोजेक्ट जो कंबर में कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग हम वहाँ पे दे रहे हैं प्राइमरी केयर फिजिशियंस को, ये बॉर्डर लाइन है कि ये 1.3 है, बट द कट ऑफ वी आर यूजिंग देयर इज 1.5. ये सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हेपेटाइटिस बी पेशेंट शुड बी लाइफ लॉन्ग एन एंटीवायरल थेरेपी फॉर पी. We can't hear you, Zeeshan. I don't know, ये स्क्रीन मेरी ऑफ हो गई थी. ओके, It's okay now. We can hear you. हाँ, something happened into. So I was talking about कि जो प्राइमरी केयर प्रैक्टिस के अंदर WHO अब रिकमेंड कर रहा है बी के केस में, कि जहाँ पे लिमिटेड फैसिलिटीज हैं और पेशेंट, क्योंकि वी आर टॉकिंग नाउ, वी आर एंटरिंग इन एरा जिसमें HCV एलिमिनेशन की बात हो रही है और पेशेंट को 1 विंडो ऑपरेशन की बात हो रही है, मिस ना हो इन द नेम ऑफ वर्कअप, और कॉस्ट रिडक्शन है इन द नेम ऑफ के लैब्स की मिनिमाइजेशन करें. सो एकेडमिक प्रैक्टिस और प्राइमरी केयर प्रैक्टिस अब डाइवर्स हो गई है. देयर इज डिफरेंट ओपिनियन कि where in which setting you are seeing this patient. If this patient is being seen in a clinic which is specifically for HCV elimination, primary care setup, तो शायद ये हेपेटाइटिस बी की लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट के ऊपर जाएगा, सी का पीसीआर पॉजिटिव है, सी की ट्रीटमेंट पे जाएगा और सिरोसिस प्रोटोकॉल पे जाएगा. जो WHO कट ऑफ से मैंने कहा ये बहुत थोड़ा सा उससे मीट करते करते रह रहा है, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल है एप्री मोर देन 1 वी टेक इट एज ए सिरोसिस. WHO 1.5 के ऊपर रिकमेंड कर रहा है, और सिरोसिस प्रोटोकॉल के साथ जब हम एफसी को ट्रीट करते हैं तो वो विद राइबावारिन करते हैं. जनरली आई प्रिफेयर सॉफ्ट टेक्ला राइबा फॉर 6 months, लेकिन पेशेंट अगर, क्योंकि वो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है पेशेंट्स के लिए इन पब्लिक सेक्टर सेटिंग्स, लेकिन अगर पेशेंट ऑप्ट करता है कि नहीं जी सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट है, तो दिस पेशेंट कैन बी गिवन सॉफ्ट वेल्पा विद राइबा फॉर 3 months एज वेल. सो दैट वुड बी द सी. लेकिन जो रिकमेंडेशन कोई इन्फेक्शन की है कि जो पेशेंट्स, ये तो बी के लिए वारंट कर रहा है इन एनी केस फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि फाइब्रोसिस के साथ जब बी पॉजिटिव आ जाता है तो रिगार्डलेस ऑफ ALT, रिगार्डलेस ऑफ वायरल लोड, यू ट्रीट हेपेटाइटिस बी. तो ये बी की अपनी इंडिपेंडेंट ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं वो क्वालिफाई करने वाला पेशेंट है. अगर ये नहीं होता फाइब्रोसिस का केस, तो इन दैट केस एज वेल
बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एचसीवी ट्रीटमेंट बी के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं ये इम्यूनोसप्रेसिव होती है, ये वायरल फ्लेयर करवाती है बी का। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटीवायरल थेरेपी फॉर हेपेटाइटिस सी, patient should be on antiviral therapy for hepatitis B as well if they do not meet the criteria of treatment for hepatitis B otherwise. So ये patient इंडिपेंडेंटली अगर बी का ही केस होता तब भी ट्रीटमेंट वारंट करता था, लेकिन क्योंकि सी की ट्रीटमेंट आपने करनी है तो उस वजह से बी की ट्रीटमेंट भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट जरूरी चलेगी। लेकिन इसको तो शायद हमें लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लुक्स लाइक कि ये सिरोसिस का पेशेंट है। उसके अलावा ज़ाहिर है एनीमिया का वर्कअप इसका हमें करना होगा कि मेल पेशेंट है, इसको एनीमिया है, तो उसके लिए उसको इवेलुएट करना होगा। जी है सर। जी मेरे ख्याल में इस पे आई टोटली एग्री विद यू। कुछ तो ये इनकम्प्लीट था, बट आई जस्ट सॉ दिस केस, मेरे ख्याल में मुझे कल दिखाया था, तो आई जस्ट वांटेड, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स वर्क अप। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि अनीमिया के को भी हमें देखना होता है, और 9.3 है, जिस तरह डॉक्टर जीशान ने बड़ा अच्छा बताया इसको। सिरोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे एमसीवी की भी इम्पोर्टेंस है। तो हम चीजों को तकरीबन हर एंगल से ही देखना चाहिए। और बी के बारे में आई टोटली एग्री विद हिम। इसकी इसकी मेरे ख्याल में इट वुड बी नाइस कि अगर इसके रिजल्ट्स जब कंप्लीट हों तो हम इसको एक दफा दोबारा डिस्कस कर लें, टू सी इसकी इसकी बाकी चीजों में क्या आता है, हमें कोई अनीमिया का कॉज वैसे मिलता है या नहीं मिलता। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो काइंडली ऑडियंस में से कोई अगर कैसे उजैर, अगर आप स्टॉप शेयर कर दें तो इफ वी कैन यू हैव एनी क्वेश्चन तो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम महक सबा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप लोग हेपेटाइटिस एपीडी जो कर रहे होते हैं, जो डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल हमने अभी डिस्कस किया नया, दैट इज न्यू। उसमें कोई चेंज है डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल में जीशान? कोई पीसीआर एलिमिनेट कर दिया है हेपेटाइटिस बी में। फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में जरूरत ही नहीं है पीसीआर कराने की। एप्री 1.5 से ज्यादा है सफिशिएंट एंटीजन पॉजिटिव लाइफ टाइम ट्रीटमेंट दे दें। दे हैव सिंप्लीफाइड द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सरफेस एंटीजन ओनली। ठीक, चलो, दैट्स व्हेयर दे हैव रिड्यूस्ड इट। अभी कंबर प्रोजेक्ट के अंदर हुमी रजावी से हमारी डिस्कशन हुई थी कि इसके अंदर वी विल लुक इनटू द कॉस्ट एनालिसिस के भाई पीसीआर बाद में करने की कितनी जरूरत है सी के अंदर भी। फिर वी गो फॉर द पीसीआर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ पॉजिटिविटी ऑफ एचसीवी आरडीटी ना, क्योंकि देयर वाज फ्यू पेपर्स जिसमें ये है कि अगर अर्ली पॉजिटिविटी आती है तो दैट इज वायरीमिया। तो जो फर्स्ट पीसीआर है उसके ऊपर भी तकरीबन वी आर गोइंग टू लुक इनटू के टीएचएफ डेटा के अंदर और इसमें कंबर में। हमने अभी डेट भेजा है एक एब्स्ट्रैक्ट ईजल में ऑन दिस, और आई थिंक इफ इट इज लेस देन 2 minutes इट कोरिलेट्स रीजनेबली वेल। लेकिन अभी मुझे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, बट ऑल दोज हु हैड वायरल लोड, तो उसमें गालबन 120 सेकेंड्स का या कुछ ना था इसका जो 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 कट ऑफ लिया है। आपकी किट कौन सी यूज कर रहे हैं आप लोग? ये आरडीडी जो है, जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, नहीं उसमें हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में मेरा ख्याल है अभी एसडी बायोलाइन आई थी सिंध में। गालबन तो एसडी बायोलाइन है, ये गालबन वही हाँ, वाली है। क्योंकि हमारे पास कंबर वाले के अंदर एसडी बायोलाइन है और पीएचएफ के अंदर जो है वो एसडी वो है नहीं एसडी बायोलाइन इज इन कंबर, क्योंकि वो डब्ल्यूएचओ इज इन टीएचएफ, वो डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड है। और एसडी जो है ना दूसरा है, नेम इज समथिंग डिफरेंट, कि एक एबट की है और एक एबट की नहीं है इसमें। बायोलाइन इज एबट ना। सो मुझसे अगर आप शेयर करें अगर इसका जो प्रोटोकॉल है ना, और इसका सैंपल साइज क्या था आपका?
I think 600 patient. Let me share the data. We are looking into 1,000+ patients ना, तो क्योंकि जो इनका THF का है कि वो तो साइट जो है, एक साइट के ऊपर तकरीबन कोई 300-400 स्क्रीनिंग हो रही है, तो we are looking into that project as well कि अगर should we get the PCR done or not for the C if we have got real time reporting. ठीक है. मेरे ख्याल में if you can move to the second case, G Uzair, if you can share the second case. This There is a question in the chat. Chat के अंदर let me see the question. जी, ये क्वेश्चन है, विदाउट पीसीआर हाउ कैन बी डिटरमिन दैट एंटीवायरल थेरेपी विल बी इफेक्टिव जस्ट बेस्ड ऑन एंटीबॉडी इन द एब्सेंस ऑफ वायरल लोड, हाउ डज दैट डिटरमिन द फॉलो अप. आपने सॉरी इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ फॉर हेपेटाइटिस बी. नहीं वो मैं मेरी स्टेटमेंट को ही बोला है. अगेन सबा, that's a good question. We are talking about hepatitis B when we are saying कि हम PCR eliminate कर रहे हैं. That's what the WHO says nowadays. क्योंकि जब hepatitis B के अंदर when we have established this patient is advanced cirrhosis, क्योंकि उन्होंने जो प्री कट ऑफ दिया है उस गाइडलाइन के अंदर वो 1.5 दिया है. 1.5 का मतलब ये है कि दिस इज एडवांस सिरोसिस. तो एडवांस सिरोसिस तो ये एक डिबेट एकेडमिक भी थी कि क्या वायरल लोड का कोई रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. जो इस वक्त करंट इंटरनेशनल गाइडलाइंस दूसरी हैं, WSLD या ईजल या पाजल, वो एनी पॉजिटिव PCR को ट्रीटमेंट की इंडिकेशन दे रही थी. WHO हैव टेकन अनदर स्टेप फॉर HCV एलिमिनेशन. जो इनकी गोल्स हैं उसके लिए कि सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो PCR तो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होता है, CCDNA मौजूद रहता है. लाइफ लॉन्ग इलनेस है हेपेटाइटिस बी. सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, इट्स नॉट फॉर द सी. कि ये सिरोटिक पेशेंट है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, CCDNA मौजूद है, लाइफ लॉन्ग इलनेस है, इसको लाइफ लॉन्ग वायरल सप्रेशन के ऊपर डालें, इसका फॉलोअप की कोई जरूरत नहीं है. काउंसिल देम फॉर लाइफ लॉन्ग थेरेपी एंड गिव देम ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ लॉन्ग थेरेपी. एंड दैट्स व्हाई नाउ द CM प्रोग्राम इज ऑल्सो, पहले इनका ये था 6 महीने साल की ट्रीटमेंट दे के बंद कर दिया करते थे. अब उनको क्लियर इंडिकेशन है कि सिरोटिक पेशेंट्स जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव हैं, कोई और टेस्ट भले ना कराएं आप, लेकिन लाइफ लॉन्ग उनको ICV सर्वेलेंस के ऊपर और लाइफ लॉन्ग HBV वायरल लोड के ऊपर, एंटीवायरल थेरेपी के ऊपर रखें. फॉलोअप्स के अंदर PCR पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, सिरोसिस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, अब आपने सिर्फ उसको HCC के लिए फॉलो करना है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन सबा. जी, I think we move on to the next case. Basically, it's a case of a patient with CKD and who is on hemodialysis and hepatitis C. So this gentleman presents with body pain and weakness, a known case of diabetes, hypertension, and chronic kidney disease on hemodialysis for past 6 weeks. अगर आप इनकी लैब्स देखें तो this anemia is not significant. यहाँ पे क्रिएटिनिन इतने बुरे नहीं है. आई एम नॉट श्योर जब इनका डायलिसिस हुआ होगा तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी. द लेटेस्ट क्रिएटिनिन इज 2.4. LFTs they look good. Sugars are very high, but this report is from January 2021, June 2021, जो कि sugar is around 500. लेकिन 11 November 2022 में A1C 7.3 है, which is good. Hep C positive viral load is I think 23 lakhs. 23 lakhs, around 2,300,000. ठीक है. तो basically the question here is about starting DAA on a patient in hemodialysis. तो एप्री स्कोर इसका अच्छा है. अल्ट्रासाउंड हमारे सामने कोलिलिथाइसिस है with normal liver and spleen. Kidneys are echogenic. So Zeeshan, basically on with the patient on hemodialysis, आप उसको कैसे मैनेज करोगे, काउंसल कैसे करोगे कि the question will remain. और एक हमारा जो हमेशा का क्वेश्चन होता है कि मशीन कौन सी होनी चाहिए डायलिसिस की, जिसकी हम अल्ताफ साहब पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं. जी, ओवर टू यू. इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन चलती है कि मशीन पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें, दैट सेकंड है.
different debate. Okay, coming back to this case again, a real life case, excellent case. You definitely looking into the hemoglobin and the fluctuating creatinine. It looks like a case of acute and chronic kidney disease के अंडरलाइन acute insult कोई हुई है किडनी डिजीज का जिस पे डायलिसिस की जरूरत पड़ी है प्रॉब्ली अदरवाइज रीनल फंक्शंस बहुत बुरे शायद नहीं थे जब मरीज हम देखते हैं तो सिर्फ हेपेटाइटिस नहीं ट्रीट करते ना दैट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आई वुड गिव कि इट्स नॉट हेपेटाइटिस विच यू आर ट्रीटिंग वी आर ट्रीटिंग ए पेशेंट ये पेशेंट डायबिटिक है हाइपरटेंसिव है इसकी डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल की हिस्ट्री नहीं है गो कि जो रीसेंट इसकी हुई है HbA1c looks acceptable with kidney disease with hepatitis with dialysis going on 7.3 is well within the target range of the HbA1c के इट्स ए गुड HbA1c तो डायबिटीज कंट्रोल इस किस्म के जब भी को मल्टीपल कोमॉर्बिड के पेशेंट्स हैं तो वो देखना है डायलिसिस का जहां तक ताल्लुक है हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स या किडनी फंक्शन से रिलेटेड जो एंटीवायरल थेरेपी है सी की आप सॉफ्ट डेक्ला रिजीम पे जाएं सॉफ्ट वेल्पा रिजीम पे जाएं वो कि मोस्ट ऑफ द गाइडलाइन सपोर्ट सॉफ्ट वेल्पा वो वैसे भी सॉफ्ट वेल्पा को ज्यादा फेवर करते हैं लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि सॉफ्ट डेक्ला is not inferior to the soft velpa and it does save the cost. हाँ इस पेशेंट में जो चीज आप नहीं दे सकते हैं वो राइबावायरिन है राइबावायरिन कैन नॉट बी गिवन इन कैन नॉट कुछ पेशेंट्स में हमें देनी पड़ती है बड़ा लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ वेरी एक्सपीरियंस सेटअप्स के साथ बहुत रिड्यूस डोज के साथ हमने दी है कुछ पेशेंट्स में जो कि रिलेक्स वगैरह के साथ आते हैं बट इट्स डिफिकल्ट टू टाइट्रेट राइबावायरिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं इन CKD पेशेंट ऑन हेमोडायलिसिस generally saying most of the guidelines do not recommend again expert opinion and based on that we at times do treat these patients with riba as well but with this patient क्योंकि इसमें एप्री ठीक है सिरोसिस नहीं है सिर्फ रीनल फेलियर है रीनल फेलियर के लिए रूटीन डोज जो आपका नॉर्मल डोज है उसी के तहत जो है आप सॉफ्ट वेल्पा या सॉफ्ट टेक्ला दे सकते हैं सॉफ्ट वेल्पा देते हैं तो 3 months थेरेपी होगी सॉफ्ट टेक्ला देते हैं तो क्योंकि सिरोटिक है immunocompromised I prefer to extend the treatment again this is based on expert opinion it is not guidelines but I prefer to give 6-month therapy in these patients क्योंकि ये immunocompromised होते हैं इनमें रिलेप्स के चांसेस ज्यादा होते हैं राइबा हम इनमें नहीं देते हैं लेकिन जब सॉफ्डेक्ला को हम प्रोलॉन्ग करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ के इंश्योर कर लें कि रिलेप्स ना हो पेशेंट्स में क्योंकि किडनी फंक्शन डाउन होने से ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि सॉफ्टवेयर टेक्लेटाइसवेयर या फॉर दैट मैटर जो है वेल्पेटाइसवेयर के लेवल्स के अंदर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता शुरू शुरू में कुछ स्टडीज थी जिसमें सॉफ्टवेयर के मेटाबोलाइट को देखा गया था बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड कि वी कैन गिव द रूटीन यूजुअल डोज एज नॉन हेमोडायलिसिस पेशेंट और नॉन किडनी डिसफंक्शन पेशेंट्स इसको आप ट्रीट कर सकते हैं Any question regarding treating hepatitis C in a CKD patient or for that matter diabetes management in hepatitis? Uzair, if you can stop share here. आपके पास एक्सपीरियंस में ज़ीशान कितने पेशेंट्स हैं जो आते हो with these from your dialysis unit to come for treatment or unfortunately patients तो आते हैं but the biggest challenge is on वो जब दोबारा डायलिसिस पे ongoing होते हैं और वो दोबारा री-इन्फेक्शन लगता है री-इन्फेक्शन ज्यादा होती है और मैं यहाँ भी ये भी क्लियर कर दूं क्योंकि जो सीरो पॉजिटिविटी तो वो रहती है वो तो तो बट वी नीड टू चेक PCR अगेन और आप कब अलर्ट होते हो LFTs पे अलर्ट होते हो इज इट अ रूटीन फॉर यू कि इनको 6 महीने साल बाद वंस दे हैव अचीव्ड SPR12 यू कीप चेकिंग देयर PCR इफ दे आर इन योर फॉलो अप अच्छा क्योंकि हमारे पास being as a tertiary care setup काफी busy nephrology unit भी है तो we every clinic we get 1 or 2 consults from nephro with PCR positive hepatitis B or C patients for their treatment and
So it's not unusual being as a large tertiary care setup to see these patients with dialysis. रूटीन एडवाइस हमारे पास पीसीआर कराना बहुत प्रैक्टिकल नहीं होता. अगेन बीइंग एज ए पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है, पेमेंट पे होती है. तो what we follow is कि उनको LFTs follow करते हैं. अब if they get deranged, that is the time when we ask them to repeat the PCR. Generally इनको PCRs हम वैसे ही रूटीन में जो है 6 month बाद, 1 year बाद और फिर उसके 1 साल बाद एक एक्स्ट्रा PCR, 3 PCR हम कराते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थेरेपी. तो वो तो एक रूटीन इनको एडवाइस होती है, उसमें 1-1.5 साल का पीरियड तो गुजरता है. We do educate the department as well as the patient के जो infection control practices हैं उनको बेहतर किया जाए. डायलाइजर सेट्स वगैरह की शेयरिंग को मतलब शेयरिंग तो नहीं होती है, वो स्टोरेज होती है जिसको प्रॉब्लम करती है, उस स्टोरेज को अवॉइड किया जाए. So with that we hope कि reinfection rate, I will look into this matter. मैं अपने nephrology department से बात करूंगा. That's a good thought के we should look into those patients जिनको हमने treat किया है पिछले 1 साल 2 साल के अंदर, how many of those actually get reinfected. इसके ऊपर आई होप महक, ये मेरा ख्याल आपका प्रोजेक्ट बनेगा कि कोऑर्डिनेट विद जो है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड इफ वी कैन गेट द डेटा कि जिन पेशेंट्स को हमने हेपेटाइटिस सी को ट्रीट किया है, हाउ मेनी ऑफ देम हु अचीव्ड एसवीआर गॉट रीइंफेक्टेड. Any other questions? कोई comment from anybody? ओके मेरे ख्याल में अगर कोई क्वेश्चन नहीं है जीशान, मेरे ख्याल में आई रियली लाइक टू थैंक यू वेरी मच. और आई एम श्योर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन भी किया है, और इट्स रियली नाइस ऑफ देम. मेरे ख्याल में रमजान में we'll have a break, so I'm looking forward to the visit to Karachi inshallah next week. And I think if there is nothing on agenda, Kiran, we can call off the meeting. थैंक यू डॉक्टर असद, थैंक यू डॉक्टर ज़ीशान. इसके अलावा ये है कि इफ द पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके पास कोई केसेस हैं, आपके अपने केसेस हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. हम आपको केस के लिए फॉर्मेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम आपके लिए केस प्रेजेंट भी कर सकते हैं. और वी करंटली हैव 3 programs running: hepatitis echo, digestive echo, and IBD echo sessions. Or we won't be having any session in the month of Ramadan, but we will resume our activities after Eid, and hopefully we'll bring some more programs for you. All the previous sessions are uploaded on the YouTube channel as well. We are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferozan's Laboratory Limited for the unrestricted educational grant, and our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. So Allah Hafiz for now. Uzair, you can call off the meeting, please. Sure, ma'am. Allah Hafiz.